अब राजस्थानी फैमिली से कभी लड़कियां बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए सिटी में, एंड इफ आई एम मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री इट विल बी बिग चैलेंज फॉर मी। भी काफी टफ टाइम था कि स्नो में चप्पल पहन के आप जा रहे हो, लेग इन्फेक्शन में चप्पल पहन के क्यों गई? मेरे पास अभी भी वो कुर्ते पड़े हुए हैं जिनपे तूने कुछ तो बकवास लिखा हुआ है, और मैं वो सब चीजें बहुत मिस करती हूँ, और वो स्टूपिडिटीज आई लव इट। sat on the table and had my lunch with them, and then as we have the conversation और बात करके पता लगा कि ये पाकिस्तानी है। फिर जब उनसे बात करके पता लगा कि पाकिस्तानी लोग भी इतने अच्छे होते हैं। Hello guys, this is me Palak Chorad on another episode of Palak Chorad The Inter Talk. So today we have a special guest who is my oldest school friend. She's a very dedicated and determined human being. So please welcome Ishita Modi. Hi everyone, I'm here. Thank you Palak for this opportunity. Thank you so much Ishu for coming on the podcast and catching up back like old times. It's very long time to be here and to discussing our life. I know it's bit different. I know it's very bit different path, but still we have the same roots, same issues, and the same values. Yeah, that's right. Okay, Ju. So we are going to discuss about your student exchange program, which happened last year, right? Yeah, almost 1 year was back. Yeah, so it was in Sweden and at the University of Skovdo, and she was sent by her university, LPU Jalandhar, and she worked so hard for that to be there and to get enrolled in that university. It was a tough procedure, but she made it through. So first of all, congratulations for making it through the student exchange program and to be at Sweden. So how was Sweden for you? Thank you for your wishes, but how for me the Sweden it was a dream, and the day I landed to the stop, I still want someone to record my expression and how I felt. It was like just memorable, and I can't define those feelings. How I felt to be an European country and to be at the top universities. Starting my journey from a small town girl, and now I have somehow figured out how I look myself ahead after 5 years. Okay. So issue मतलब अपन अभी ऐसे बात इस टॉपिक पे करते हैं कॉन्वर्सेशन कि जो तुम्हारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है वो कैसे होता है, मतलब, और इसमें स्वीडन ही क्यों चूज किया गया? मतलब कोई और कंट्रीज भी है या फिर तुम्हारा स्वीडन के साथ ही मतलब बॉन्डिंग है एक्सचेंज प्रोग्राम का कि उनके बच्चे तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुम उनके यहाँ जाते हो? सो वो प्रोसीजर और एडमिशन का जो भी तेरा प्रोटोकॉल था, जो तूने स्ट्रगल किया, वो सब let us know. Yeah, initially your entire student exchange program depends upon your ability of academics, like how you are being into academics the previous semesters. Like the academics, almost I should suggest you to be the CGPA around 8.5 or 9. Okay. It seems to be easy, but it's not, because since in each semester you are going to have 12 subjects, and in 24 subjects you need to have your A+ grade. And after getting your A+ grades, you need to look out for the universities is mapped with your foreign universities. Now the major decision here, it comes like which universities I should choose. Like there will be a number of the universities mapped with your foreign Indian universities. So you should map the courses with the university courses. So number of the courses should be the high. Which university have the highest mapped courses, you should choose that. But if you have to choose, it should be a preferable one. For me, it will be the Canada, but I couldn't choose that because I need to clear the IELTS and it will take more time. Okay. It is a personal preference which country you would like to go. I would like to explore Sweden and Europe, so I choose that. Okay. So मतलब और कौन-कौन से यूनिवर्सिटीज थे जो तेरे पास ऑप्शंस थे, मतलब, या कंट्रीज थे? Honestly speaking, during this process, I was rejected by 2 or 3 universities because I couldn't hold those skills and not clear their examinations. Right.
I was rejected by France. I was rejected by Germany. Since I would like to pursue and I was determined enough to like I need to go. मुझे जाना ही है. मेरे पास option नहीं है इस बार. Hmm. I decided to continue the process. Since the hard work favors, Hmm. I got the offer letter. Remember, it was like April की गर्मी और इतनी गर्मी में आपको you need to still giving the semester examination. Then I have to rush between the visas and everything. It was tough, literally. सो जब तू गई थी यहाँ से, सो अपन शुरू से बात करते हैं। तो ऑब्वियसली वो तेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था, तेरी फैमिली बहुत प्राउड थी उस चीज को लेके, तूने मतलब मुझे बताया भी था पर्सनली इस चीज को लेके, तू खुद बहुत ओवरवेल्म थी, बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस से ऑब्वियसली। तो जब तू यहाँ से जा रही थी, सब पैकिंग एंड ऑल स्टफ हो रहा था, तो लाइक क्या क्या था तेरे दिमाग में कि तुझे वहां जाके क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है, मतलब तेरे माइंड में क्या चल रहा था, तेरी मेंटेलिटी क्या थी उस टाइम पे? Like जब मुझे पता लगा अगर it was still I remember it was in the end of the July I received an email from the VFS that your visa has arrived. जब तक वीजा नहीं आता किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते कि आपका वीजा आ ही गया है. जब आए मेरे पापा वीजा लेके आए देन आई वाज प्रीटी श्योर कि अब मुझे जाना है. और 2-3 दिन पहले I wasn't able to sleep before क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था एयरपोर्ट पे जाने के बाद where I will be going, कहाँ जाऊंगी, कुछ भी नहीं पता था. बस ये पता था ये टिकट्स है मेरे पास, ये वीजा है, आई नीड टू फ्लाई. आफ्टर फ्लाइट मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ्लाई करने के बाद मेरे चैलेंजेस कैसे होंगे, कैसे लाइफ फेस होगी. बट स्टिल मेरे माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड था कि वहां पे कोई मुझे सेव करने नहीं आएगा. तो आई मेक श्योर कि मैं किसी प्रॉब्लम को खुद क्रिएट ना करूं और मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ूंगी ना. आइदर इमोशनल चैलेंजेस ना क्रिएट करूं किसी मेरे लिए, और ना एकेडमिक चैलेंजेस, और कोई भी तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स में मैं खुद को ना पाऊं. क्योंकि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो मुझे कोई नहीं बचाने आ सकता. इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल होगा ना. फोन पे सब लोग गाइड कर देंगे पर मेरे लिए कोई सेव करने के लिए नहीं होगा. बस एक ही माइंड में था कि मुझे वहां था कि मैं इंडिपेंडेंट बनने जा रही हूँ. जो मेरा अल्टीमेट एम है इस एक्सचेंज प्रोग्राम का, कि मैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल देखना चाहती थी कि यार मैं कितनी पोटेंशियल होल्ड करती हूँ लाइफ में, कि क्या मैं अकेले सर्वाइव कर सकती हूँ, क्या मैं अकेले अपना बेस्ट दे पाऊंगी, क्या मैं अकेले सब चीजों को मैनेज करके खुद को एक इंडिविजुअलिटी की तरह इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाऊंगी. और मतलब इंडियन स्टूडेंट्स में स्वीडन, मतलब तेरे कॉलेज में जो स्कोडो यूनिवर्सिटी थी उसमें तू ही एक इंडियन स्टूडेंट थी? हाँ मैं ही थी. नहीं, देयर वर मैनी अदर स्टूडेंट्स, और भी स्टूडेंट्स थे, पर सिंस फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी आई वाज द वन. ओ, इंडियन स्टूडेंट्स और थे? हाँ, like there were the students of masters, but from my university I was the one, but there were another 5 more students I remember. ओके. और मतलब तेरे पर्सनली जो मतलब था एक मतलब अंकल आंटी को मतलब ज्यादा टाइम उन लोगों को फेस करना, मतलब एक वो वाला इमोशन, वो काफी टफ था शुरू में, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि 6 महीने बाद आई कुडंट कि मैं किस सिचुएशन, क्योंकि मुझे पता था घर पे सब सही रहेगा क्योंकि वो फैमिली सब साथ में रह रहे हैं. बट मैं अकेली, सिंस अब राजस्थानी फैमिली से कभी लड़कियां बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए सिटी में, एंड इफ आई एम मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री इट विल बी बिग चैलेंज फॉर मी कि मैं सोसाइटी को कैसे हैंडल करूंगी. तो उस वक्त आई टुक मेजर स्टेप्स कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अब कुछ भी बहुत कम पोस्ट करना शुरू कर दिया. मैंने व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लिया ताकि मैं लीस्ट कॉन्टेक्टेड रहूं, क्योंकि फिर आई डोंट वांट कि बीच में कुछ भी इंटरप्शन हो या कुछ भी नेगेटिविटी आए. ओके. नजर इज रियल, वो वाला कॉन्सेप्ट क्या? हाँ, बट फिर भी लगी, बट पीपल गेट टू नो सम हाउ कि शी वेंट, और देन आई गॉट सम लेग इन्फेक्शन. वो भी काफी टफ टाइम था कि स्नो में चप्पल पहन के आप जा रहे हो, लेग इन्फेक्शन में. चप्पल पहन के क्यों गई? आई गॉट लेग इन्फेक्शन, लाइक फंगल इन्फेक्शन टू माई लेग्स. अच्छा. और मतलब वहां पहुंच के जो यूनिवर्सिटी थी वो वेलकमिंग थी, मतलब तुझे वहां जाके मतलब एटलीस्ट तुझे वहां एयरपोर्ट पे उतरने के बाद तुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई? होपफुली तुझे वहां आराम से अकोमोडेशन भी मिला है, वो सब हुआ ना? Compared to Indian university versus European university, they are far better.
I guess they are far better in every terms, in terms of providing opportunities, in terms of providing internships to the people, in terms of providing better environment for our mental health and physical health, and in ओके terms of providing friendships, I guess. ओके, सो मतलब अब वहां पहुंचने के बाद तुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, जो भी था यहाँ पे वीजा वगैरह का या जो भी स्ट्रगल था तेरा यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस का, वही था? बेसिक प्रॉब्लम्स जो एक ह्यूमन को आती है, जैसे लोनलीनेस, घर को याद करना, वो तो यहाँ पे भी मैं बाहर रहती हूँ तो होता ही है, हम्म पर प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कोई कोई स्टोर का कुछ पता नहीं था, कहाँ स्टोर है, कहाँ से शॉपिंग करनी है, तो धीरे धीरे आप, अगर इफ यू गेट द वीजा, तो वो होता है ना, यूनिवर्स ने आपको चूज किया है उस चीज के लिए, तो यूनिवर्स को पता होता है कि सम हाउ यू विल गेट दोज थिंग्स इनटू द बैग, कि आप वो स्टोर्स भी ढूंढ लोगे, आप अकेले उन रास्तों पे भी चल लोगे जहां आपने सोचा नहीं था। विद टाइम ओके आई फिगर आउट इतना वहां जाके मुश्किल नहीं हुआ जितना इंडिया से मुश्किल था। मतलब इंडिया के रैट रेस से निकल के वहां पहुंचना मुश्किल था। ओके। और अच्छा इशू, मतलब उस टाइम थोड़ी आवाज कट गई थी, तो अपन उसको शुरू वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से अभी लेते हैं। तो तू ना मतलब ये बता कि जो तेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो तूने बताया कि उसमें अच्छी जीपी तो चाहिए ही ऑब्वियसली, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी कंपटीशन होता है कि कौन जाएगा। तो हाँ, अप्लाई मतलब वही है कि ऊपर का जो क्रीमी लेयर है स्टूडेंट्स में, वही अप्लाई करते हैं और उनमें से भी सेलेक्ट होता है फिर एक पर्सन? not that. There will be like 5 tests for me the university conducted me. The first was basically based upon the interview round. ओके, इंटरव्यू अबाउट? Interview round is basically my communication skills and my subject knowledge, and there was basically looking about how confident you are that you are going to represent your university, so how you are. And second round, there was a panel of 5 teachers. They were sitting in front of me and they were creating a mindful situation, and I need to suggest them a suitable solution. ओके And the third test was basically your verbal ability, how you like speak. And the fourth was group discussion, I guess. And the fifth was basically after the selected students, they need to look after their personality, how they look and how they behave in terms of like behavioral or manners. But your entire personality is judged in the university. Then they send up the MU for you to go. ओके। अच्छा, और वीजा वगैरह जो है वो खुद करना पड़ता है? हाँ, वीजा आपका खुद का होगा। यूनिवर्सिटी आपकी Okay. मदद करेगी अप्लाई करने में, पर आप और आपका इंटरव्यू देने तो वीजा में आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, और तेरा मतलब पर्सनली तो मतलब उसमें फी वगैरह का वो तो सीन था ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू गई थी तू। It was like basically free, and it was like almost 15 lakh per semester. That like I was completely waived off. ओके। और तू कितने टाइम के लिए थी स्वीडन में? 8 months, I guess, proper. ओके, ठीक है। और हाँ मतलब जस्ट बिकॉज तू इतना टाइम वहां पे रही है, तो तुझे ऐसा डिफरेंस दिखता है इंडियन लाइक एजुकेशन सिस्टम में, या कल्चरल डिफरेंस भी? जो अपन पहले एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और स्वीडन का, स्वीडिश एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस है, लाइक क्या अलग लगा तुझे, क्या बेटर लगा, क्या बेटर नहीं लगा, उस तरह से? Basically, the first major difference is like स्वीडिश या यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी बताता है कि आपको इंटर्नशिप कैसे करनी है, आपको जॉब मार्केट के लिए पहले दिन से तैयार किया जाता है वहां पे। तो जब आप तक 6th या 7th सेमेस्टर तक, आप जैसे लाइक करंटली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, अभी 4 महीने बाद मेरी कंपनीज आ रही हैं, मेरे पास A+ ग्रेड्स हैं, मेरे सब्जेक्ट क्लियर्स हैं, मेरे पास फॉरेन एक्सपोजर होने के बावजूद भी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इनपुट मेरी यूनिवर्सिटी को 6 सेमेस्टर में करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंटर्नशिप आपको फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए, यहाँ पे एंड में करवाया जाता है, वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। मतलब बच्चे को लास्ट दिन तक प्रिपेयर कर, मतलब पहले दिन से ही प्रिपेयर करवाया जाता है फॉर हिज लाइक अपकमिंग चैलेंजेस। और अपने यहाँ पे चीजों में टाइम ज्यादा लगता है, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बच्चा फिर भी डाउट में होता है एक तरह से। हाँ, प्रोसेस थोड़ा स्लो है। और यहाँ पे और सेकंड डिफरेंस आई फेल्ट पीपल, जहाँ पे मेरे पास में जो क्लासमेट्स थे, दे वर वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर ट्रिगर्स, क्या उनकी हेल्थ ट्रिगर्स है, क्या उनके मेंटल हेल्थ के ट्रिगर्स है, तो दे वर इजीली एबल टू लाइक फिगर आउट थ्रू देयर लाइफ। आज यू कैन फिगर आउट कि आपके भी हेल्थ चैलेंजेस है और मेरे भी है, पर मैं अभी फिगर आउट वो कर ही रही हूँ।
और वो उनको ये फिगर आउट करना सेमेस्टर 1 से सिखाया जाता है कि आपको अपने हेल्थ ट्रिगर्स को फिगर आउट करना और अपनी हेल्थ को पीछे नहीं छोड़ना। मतलब बच्चों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा होता है वहां पे, वो उन्हें सिखाया जाता है, वो एक वैल्यू सिखाई जाती है उनको कॉलेज में या स्कूल में, जो अपने यहाँ पे नॉर्मली नहीं है। वैल्यू, बैलेंस डाइट की वैल्यू, बैलेंस्ड वाटर इनटेक की वैल्यू और बैलेंस आपके बॉडी को कितने टाइम तक आपको एम्प्टी रखना है ताकि वो पूरी फंक्शन कर पाए। इफ यू टॉक अबाउट मी, ये सब मैं यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन ले रही हूँ कि मैं यूट्यूब से पॉडकास्ट देख के ले रही हूँ, पर वहां पे हमें पूरे सब्जेक्ट्स हैं जो ये एजुकेशन देते हैं कि इतने टाइम पे आपका इतना वेट लॉस होगा, ये आपका प्रोसीजर है मेंटेन का। इफ यू आपको डिटॉक्स करना है तो आपको ये करना है, तो आपको इतना लाइक हसल करने की सीखना ही है लाइफ में वहां। ओके, मतलब बच्चों के लिए हसल कल्चर का जो स्पेस है वो वहां पे कम रखा जाता है, बच्चों को इंफॉर्मेटिव और अवेयर इतना बनाया जाता है शुरू से ही कि उनको स्ट्रगल मेन पॉइंट पे जाके, मेन टाइम पे जाके नहीं करनी पड़ती। जैसे हम लोग डिग्री होने के बाद स्ट्रगल करते हैं कि अब क्या करें, जॉब क्या करें वगैरह, वैसा उनको प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब वो सेल्फ भी इतना अवेयर होते हैं और प्रोफेशनली भी। इफ वहां पे सेल्फ हसल नहीं करना है, वहां पे यूनिवर्सिटी हसल कर रही है आपके लिए। आपको लाइक दे आर इन टू द स्कूल, आपका बस ये है कि आपको परफॉर्म करना है, आपको सीट पे बैठना है बस। यहाँ पे आपको आपको हसल करना है अपने ग्रेड्स और मार्क्स के लिए, और वहां पे भी आपको मतलब आप पे ही है सब। ओके, और एक हाँ मतलब ये फॉरेन में रहता भी है ना कल्चर की, वहां पे अपने यहाँ पे जैसे 75% अटेंडेंस का रहता है, उनके यहाँ 100% का रहता है। There was हाँ, no attendance criteria. There was zero attendance criteria. You can just skip the class. आपको प्रैक्टिकल वाले दिन पे आना जरूरी है, नहीं तो आपको वो फेल कर देंगे। बाकी आप सभी क्लासेस की स्किप करके आप बस एक डिग्री में पास हो सकते हो। साइड बाय साइड वो लोग पार्ट टाइम करते हैं, तभी वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि जब तक मैं डिग्री करके निकलूंगी तब तक मेरे साथ वाले 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा चुके हैं पर मंथ, और मैं फिर डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद भी, A+ ग्रेड होने के बावजूद भी उनसे कम ही कमाऊं। बिकॉज द कल्चर बैलेंस लाइफ, जहां पे बैलेंस लाइफ, इफ आई टॉक अबाउट 20 to 25 आवर्स वर्क आवर्स है उनके, देन दे गेट द टाइम फॉर द फैमिली, देयर फिजिकल हेल्थ, देयर मेंटल हेल्थ, उनके साइड हसल, साइड बिजनेस। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया राइट नाउ, आई एम हैविंग 35 आवर्स ऑफ लेक्चर पर वीक। week, Monday to Saturday without any break. So I need to complete my this semester till May, and I have 12 subjects again. सो बर्डन रहते हैं स्टूडेंट्स थोड़े अपने यहाँ पे, वहां पे बर्डन नहीं रखते हैं, वो मैनेजेबल रखते हैं पढ़ाई को। इंडिया में भी योर मेंटल हेल्थ बिकम योर मेजर कंसर्न, जो कि people like female people, like I talk about it with my parents, but male generally don't talk about it. ओके, They are balanced. और वहां पे एक फाइनेंशियल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी होता है, मैं फाइनेंस कैसे मैनेज करनी है। If I have given 100 rupees on by my father to spend on my food, how will you spend it? If I talk about a general Indian student, he will just buy 20 rupees का burger, 30 rupees का ये और ये। Is this your health? आपका हेल्थ के स्टेक पे चला गया, आपने वो वाइस स्पेंड तो नहीं किया। एंड देयर दो पीपल विल टेक 2 fruits एक टाइम पे, दे विल मैनेज द लिटिल अमाउंट ऑफ द मनी वेरी वाइजली, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें बचपन से दी जा रही है। हाँ, ये बहुत लैक है। हमें नहीं सिखाया। इंडिया में आई लर्न वन थिंग, इंडिया में लोग सेव करना तो सीख रहे हैं, स्पेंड करना नहीं सीख रहे हैं कि उन्हें कहाँ स्पेंड करना है। हाँ, वेरी राइट लाइन। मतलब और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ये, कि अपन अब इस उम्र तक भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है फाइनेंसेस के बारे में। अगर हमें अभी 2 लाख रुपए दे दिए जाए तो हमें नहीं समझ में आएगा उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। तो वो एक बहुत लैग है, जबकि इतनी एज होने के बाद ये सब चीजें बहुत बेसिक है, होनी चाहिए नॉलेज इनकी, बट अपने यहाँ पे नहीं है। जो उस फील्ड में जाते हैं उन्हीं को ही होती है, बस जो कॉमर्स फील्ड में है, जो फाइनेंस के फील्ड में, उन्हीं को पता होता है। सो दैट्स लाइक वेरी गुड पॉइंट यू मेंशन्ड। ओके, सो इशू अभी अपन ने एजुकेशनल डिफरेंसेस के बारे में देखा, कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में मतलब तू क्या मेंशन करेगी? वहां पे खाना वगैरह कैसा रहता है, क्लोथिंग एंड ऑल कैसा रहता है, और लोग आपस में कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ? लाइक हाउ इज दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट? मतलब टीवी पे तो मूवीज में हमने देखा है, बट तू वहां जाके देख के, सो हाउ क्लोज वाज इट? If I talk about them, they just told me one word: live a life you will remember. Because once you will die, people won't even remember you just for 2 days. So if you are hampering you for someone else's sake, then you are doing wrong to yourself. Just understand the cultural difference in one word. Like
live a life you will remember. Live it the way you want to be, apart from your parents, friends, whatever. Although you need to do good in life, what they told. Although you need to achieve many things, but just live us little moments, enjoy. They just enjoy simply a cup of coffee and sit and they मतलब felt छोटी like छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं वो लोग. अगर आज कपड़े धोए हैं तो कपड़े धोने में खुशी ढूंढी उन लोग. मतलब तू वहां पे गई तो तुझे खाने वगैरह की प्रॉब्लम्स नहीं है? जैसे तू तो प्योर वेजिटेरियन है, तो खाने वगैरह में कैसे प्रॉब्लम था? कैसा सीन है वहाँ? शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मैं मैगी खा के एडजस्ट कर लूंगी. तो मैंने इतने 15 दिन तो मैं 15 दिन आई लुक फॉर द स्टोर्स और मैंने मैगी का जुगाड़ कहीं से किया. पर 16वें दिन आई फेल्ट कि यार इससे तो कुछ नहीं हो रहा है. इससे मतलब मैं टेम्पररी हूँ. मैं मुझे आटा तो चाहिएगा ही और बेसिक पल्सेस मैं तो होना चाहिए. हाँ. फिर आई फिगर आउट कि वहां पे कुछ ब्रेड्स बनती है ना, उनका आटा मुझे मिला खाना बनाने के लिए. ओ, उनसे मतलब मैं मिल ही खाना गया फाइनली. हाँ, वो बहुत सर्च करने के बाद, खुद को एक्सप्लोर करने के बाद, नहीं इससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, मुझे पढ़ना है तो मेरा पेट तो मुझे भरना होगा. और वहां पे यूजुअली लोग क्या खाते हैं? वहां का स्टेबल फूड क्या है? They basically, if I talk about the breakfast, it's basically fruits and nuts. Staple breakfast, coffee, fruits and nuts. Coffee भी black coffee, they felt कि उनका nervous system बहुत ज्यादा like सही रहता है. Black coffee and dry fruits. ओके. और And मतलब they have नॉन the वेज? heavy लंच में, अगर if I talk about the vegetarians तो अच्छे से heavy lunch. और dinner, they had their dinner almost as 5:30 p.m. 5:30? Their वहां पे सनसेट कब होता है? sunset, if I talk about winter, it's almost 4 p.m. or 3 p.m. in the afternoon. ओके, काफी अर्ली होता है. हाँ, और अगर उनका डिनर का सबसे अच्छा चीज ये कि शाम को 5:30 दे आर डन विद देयर डिनर्स. हम्म. एंड I think that's the only reason they look so young, that you are not able to distinguish between the 20-year-old and 50-year-old. हाँ, वो तो है. मतलब वो तो मोस्टली हर फॉरनर वगैरह में इधर रहता है इनका. And they're physically fit also because they dedicate almost 30 hours per week to their health. फिटनेस. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरे फ्रेंड सर्कल का, कि वहां पे तूने मतलब स्वीडन में गई तू, तो वहां पे तेरा फ्रेंड सर्कल कैसा था? लाइक वो लोग हेल्पफुल थे? उन लोगों ने तेरे हेल्प की वहां पे सरवाइव करने में? वहां पे जो तेरा टाइम था वो उस टाइम तू पीसफुली रह पाई, तो उसमें तेरे फ्रेंड्स वगैरह अगर बने थे तो उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था? लाइक कैसे लोग थे वो एज अ फ्रेंड? Like I met some of the like best people of my life there. जब मैं गई, स्टिल रिमेम्बर, मैं अपना लंच लेके जा रही थी. इंटरनेशनल लंच एक सेरेमनी थी वहां पे. तो आई वाज जस्ट मूविंग टू द टेबल, एंड देन सम ऑफ द पीपल, इट सीम्ड दैट दे वर फ्रॉम इंडिया एंड दे कॉल्ड मी, एंड आई sat on the table and had my lunch with them. And then as we have the conversation, और बात करके पता लगा कि ये पाकिस्तानी है. फिर जब उनसे बात ओ. करके पता लगा कि पाकिस्तानी लोग भी इतने अच्छे होते हैं. लाइक हमें तो ट्रेडिशनली हमारे माइंड में ये डाला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अच्छे नहीं है. बट उनसे बात करके मुझे सच में अच्छा लगा कि लाइक दे आर द बेस्ट. फिर हम फ्रेंड्स बन गए, सिंस हम सेम दिखते थे अपीयरेंस में. हमारा स्किन टाइप सेम था क्योंकि बाकी सब लोग वाइट वाइट थे, हम लोग थोड़े से डार्क एज कम्पेरिजन टू देम ब्रिटिश तो. थे, और हम थोड़े से ब्रिटिश थे. तो हम फ्रेंड्स बने, फिर हमारी क्लास सेम होने लगी. फिर हमने कुछ ऐसी मेमोरी शेयर की, लाइक वी स्टिल रिमेम्बर की हम सबको ये पता था कि देव नोन की मैं एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ, 6 महीने बाद चली जाऊंगी. मुझे भी पता था, बट मुझे ऐसा लगता है डिस्टेंस आपकी फ्रेंडशिप डिफाइन नहीं करता. तो आई दे वर माई फ्रेंड्स, बट स्टिल आई हैड द बेस्ट मेमोरीज. लाइक मुझे यूनिवर्सिटी में उन जैसे फ्रेंड्स अभी तक नहीं मिले. चलिए इजी हो गया था मतलब उन लोगों की वजह से. they used to have the we used to have the dinners. हम साथ में घूमने चले जाते थे. एंड एक थ्री पर ये 3 ये थे, और एक दीदी मुझे रैंडमली जैसे बस स्टॉप पे मिले, एंड वो अपने 2 बच्चों के साथ थी. तो रैंडमली मैंने कन्वर्सेशन किया, आप ऐसे, वो भी पाकिस्तान से थे. तो दे कॉल्ड मी उनके बेटे के बर्थडे पे. देन वी हैव द बर्थडे सेलिब्रेशन. फिर हम बाद में छुट्टियों में भी साथ रहने लगे. आई मेट, मेरे 4 फ्रेंड्स बने वहां पे, चारों फीमेल पाकिस्तानी. वाओ. और अभी है कांटेक्ट में तू उनके? Yeah, I used to have talks. वो वैसे बोलते हैं मेरी शादी पे आएंगे, पर दे वर लाइक
कि हाँ मैम अच्छी मेमोरीज, मुझे ऐसा लगता है अगर आप अच्छे हो ना तो आपको एक बेटर कम्युनिटी मिलेगी। हो सकता है आप कुछ टाइम पे एक ऐसी जगह स्टक हो जाओ जहाँ पे आपको मेंटली अच्छा ना लगे। बट अच्छी बात है, देखो अच्छे फ्रेंड्स वगैरह मिले तो तेरा वहां पे रहना और इजी हो गया था। स्वीडन के लोग फ्रेंड नहीं बने? नो दे आर बिट कंजर्वेटिव। आ गया। मतलब वो लोग मतलब कंजर्वेटिव और वो लोनली लोग होते हैं और उनको अपने काम से काम, दे जस्ट फोकस ऑन देयर करियर्स एंड देयर फूड हैबिट्स एंड दे वर लाइक हाईली फोकस्ड पीपल, जो कि हम अब बने हैं अपने करियर के लिए, अब या हम आगे बनेंगे अभी। कि शायद जब अपन हम अभी तक बने भी नहीं है जितने वो हैं। नहीं बने अभी तक। इफ आई टॉक अबाउट मी, अभी नहीं, जब मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लगूंगी तब आई विल बी लाइक अपने पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचना, कोई रिश्ता नहीं। तो देवर लाइक बचपन से ऐसे है। ओके। और मतलब हाँ, ये अपना पॉइंट छूट भी गया था कि अभी तूने मेंशन भी किया कि थोड़ा कंजर्वेटिव लोग होते हैं और अपना स्पेस, अपनी प्रायोरिटी, अपने चीजों को बहुत पास में रखते हैं और हर किसी का पैकेज अपने साथ नहीं लेके चलते। वो हर किसी का क्या, अपने पेरेंट्स का पैकेज भी नहीं लेते वो तो। हाँ, वो अर्न करने लगते हैं ना, वो पार्ट टाइम इसीलिए तो करते हैं, घर से पैसा लेना बंद कर देते हैं फिर वो। When a kid is 16 year old, he started earning. He or she started earning. और 16 साल का बच्चा अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उन्हें पैसे जमा करने सीखेगा, उनको इन्वेस्ट करना सीखेगा, उनको मतलब होता है ना कि अपने शौक पे करना सीखेगा। तो वो जो चीज हम यूनिवर्सिटी के बाद सीखेंगे वो पिछले 10 सालों से सीख जाते हैं। हम्म। तो उन्हें उतना मुश्किल नहीं हो पाता है जिंदगी की, हाँ हम कैसे फाइनेंस मैनेज कर पाएंगे। ओके। और मतलब वैसे मोटा मोटा तूने हर एक क्वेश्चन में बता दिया ऑलरेडी कि तुझे वहां पे क्या चैलेंजेस वगैरह फेस किए तूने। बट फिर भी अपने मोटे मोटे पॉइंट पे देखिए तो जब कोई स्टूडेंट थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कैसे भी कोई इंटर्नशिप एक्सटर्नशिप के थ्रू बाहर जाता है, तो एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट को बाहर क्या क्या लाइक डिफिकल्टीज या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं तेरे अकॉर्डिंग? लोनलीनेस, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना नहीं आता, खुद के इमोशंस को संभालना नहीं आता, तो आप नहीं कर पाओगे। और मनी मैनेजमेंट, हम्म। academics management most important, like you need to have a point in your mind कि academics तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। हम्म। And then Okay. trying to be like an individual but still try to fit into the European standards, ओके because like ओके, हाँ ये काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। if I talk about European standards are here, academic standards and Indians are here, so you need to cover the gap within the ongoing semesters. स्टडी वाइज भी ऐसे ही रहता है क्या? मतलब वो स्टडी में कितना अच्छा होता है, मतलब ग्रेड्स वगैरह कैसी रहती है उनकी? ग्रेड्स वहां पे 30 क्रेडिट्स होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पास होना होता है, लेकिन पास होना भी टफ है क्योंकि आपको जैसे टॉक अबाउट माय सब्जेक्ट, वहाँ पे एक सब्जेक्ट था ओरल प्रेजेंटेशन करके कुछ, लाइक आई विल टॉट कि कैसे ओरल प्रेजेंटेशन देना है। द इवैल्यूएशन वाज लाइक, आई वाज लाइक शॉक्ड। देवर कि पूरा टाइम में चेक किया गया, मैंने पीछे कितनी बार मुड़ के देखा है, मैंने कितनी बार पोजेस लिए हैं, मैंने कितनी बार आई कांटेक्ट किए, दे जस्ट कैलकुलेटेड एवरीथिंग। और अगर मैं असाइनमेंट में फेल हो गई तो मैं दूसरे असाइनमेंट को मैं जाने नहीं दिए जाऊंगी। ओके। हाँ मतलब वो भी टफ होता है। असाइनमेंट 1 में पास हो रहे हो, असाइनमेंट 1 में पास हो रहे हो तो ही 2 पे जाओगे, 2 में पास हो रहे हो तो ही 3 पे जाओगे। अगर वंस यू आर आउट ऑफ द 3 पे आप फेल हो गए तो वापस 2 पे आ जाओ। और अगर फेल होते हो वहां पे तो आपके पासपोर्ट पे लिखा जाता है एग्जामिनेशन। अच्छा, तेरा कैसा रहा था एकेडमिक और परफॉर्मेंस वहां वहाँ पे पे फिर? अच्छा था। आई एम बिट सेटिस्फाइड, आई एम बिट सेटिस्फाइड कि 30 क्रेडिट्स 1 गो में आ गए, ग्रेट बात। आई वाज लाइक अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत इंडियन एजुकेशन से यूरोपियन एजुकेशन, क्योंकि इंडियन एजुकेशन इज बेसिकली एक रात पहले आप कितना रख सकते हो, कितना ओमिट कर सकते हो अगले दिन जाके। एक रात पहले तो मैंने बहुत लंबा टाइम बोल दिया, 1 घंटे पहले भी अगर आप रट रहे हो और आपकी किस्मत अच्छी है, वो एग्जाम में आ गया, तो यू आर A+ स्टूडेंट हियर। या ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप जैसे इफ आई टॉक अबाउट यूरोपियन, अगर वहां पे आप डेली नहीं पढ़ोगे तो आप पास भी क्या एक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स आर बिट इंटरेक्टिव एंड यू गेट टू नो कि स्टूडेंट कितना इंटरेक्टिव है, स्टूडेंट कितना मतलब एक्टिव है। ओके। तो उनको ये वहां पे अगर आप एक रात पहले पढ़ोगे तो पास भी नहीं हो सकते। और स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शंस कैसे रहते हैं? बिट फ्रेंडली एंड बिट नॉन जजमेंटल है। मतलब अपने यहाँ से तो बहुत बेटर होते होंगे, अपने यहाँ से तो बहुत बेटर होते हैं।
में if I talk about like students, teachers, everyone is judgmental. जजमेंटल? इंडिया में, अच्छा, इंडिया में, हाँ इंडिया में तो ऑब्वियस। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको सब जज करेंगे अगर आप कुछ आउट ऑफ द लाइक व्हेन आई रिटर्न बैक फ्रॉम स्वीडन टू द इंडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे टीचर्स ने भी मेरी लेग पुलिंग की, टीचर्स ने भी मुझे डीमोटिवेट किया, स्टूडेंट्स तो फिर उसी स्टूडेंट्स ने तो करना ही था क्योंकि आई जस्ट वेंट बिना बताए, कुछ भी नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद वापस आई, इट वाज लाइक कंप्लीटली हिडन फ्रॉम माय विल। और इट तो वाज तेरे द साथ बेस्ट कैसा था वापस डिसीजन। आने के बाद बिहेवियर टीचर्स का? Some of the teachers were like, some of the teachers were like, you are a bit different and you did something very good out of the like thousands of the students in university, you did good. And some of the teachers were like, क्या कर लिया जाके, क्या कर लूंगी, तुम लड़की हो, तुम्हें भेज किसने दिया, well everything is tagged with my gender. बीइंग अ गर्ल। और मतलब वहां पे कैसा था? वहां And if I talk about the students, it was like friends to me. Still, I had their contact number, and still we talk about career. Still, we talk about how I felt in India, and still they ask me one thing: Ishita, did you miss Sweden? Please don't ask me this question. वो आज भी डेली पूछते हैं कि स्वीडन याद आता है, मेरे का याद आता है और कितना याद आएगा। ओह माय गॉड। अच्छा, तो इसी पे बेस की तूने बोला कि तू स्वीडन को मिस करती है, तो तेरे कोई प्लान्स है आगे वापस जाने के स्वीडन में, आगे की पढ़ाई देखने के, या फिर जो भी है सेटल होने के? I look for research institutes ahead more abroad. Of course, if my family allows me, since the life अब आने वाले टाइम में इजी नहीं रहेगी क्योंकि पेरेंट्स को और भी डिसीजंस लेने हैं, अगर इफ दे अलाउ मी और इफ माय फर्दर फैमिली इज अराउंड मी, आई विल गो अहेड। बट आई वांट लेट दिस करियर के लिए मेरी बाकी फैमिली हैम्पर कर रही है या उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिसको अचीव करना है तो वो इंडिया में भी अचीव करेगा ना। हाँ, हो सकता है उसको मुश्किलें आएंगी, हो सकता है उसको ये, पर मुझे ऐसा लगता है कि यू आर हैव द 3 legs ऑफ योर, मतलब होता है ना टेबल लाइफ की, एक तो हेल्थ हो गया, आपका वेल्थ हो गया, फैमिली हो गया। अब ऐसा तो नहीं है मैं फैमिली छोड़ के 2 के पीछे बहुत अच्छे से भागूंगी, मुझे तीनों में बैलेंस रखना। हाँ, हो सकता है एक टाइम पे मैं फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं तो मेरा करियर थोड़ा सा पीछे छूट जाए, बट जितना मैंने टाइम के साथ रियलाइज किया है कि लड़कियों का थोड़ा पीछे छूटता है, बस वो रोकना नहीं है। Try harder, bro. Try harder. Everything is possible. Okay, so अभी अपन ने देखा जो भी तूने मतलब पॉइंट्स वगैरह बताए, बट इस सब में तेरा मोस्ट मेमोरेबल लाइक एक्सपीरियंस क्या था तेरा स्वीडन का, जो तू अभी तक याद करके तुझे अच्छा लगता है, तुझे फेस पे स्माइल आ जाती है, यू फील गुड अबाउट इट? That day I witnessed the beauty of Central Station of Stockholm. It was like huge, big station, clean. People were like sitting, and it doesn't seem to be a railway station. It seemed to be like some party hall. Oh my god. And the roads of Europe, and the cafes, and the solo trip to Denmark. And the days I spent, it was like initially this 1 year back. These days where I spent the Denmark. हाँ, इसी टाइम पे थी ना तू वहां पे? I went to Copenhagen और वो दिन तो I felt बैग पीछे टांगा, बैठो और घूमो, मतलब कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हुई, कोई करियर का प्रेशर नहीं फील हुआ। तब रियलाइज हुआ कि लाइफ में ट्रैवल करना भी जरूरी है। These were the days 19 to 21 January I spent in the Denmark, and like those were the like best days. मैं होटल भी मैंने अकेले चेक इन किया, होटल भी मैंने अकेले ही मैं बिल्कुल रही, अकेले मैंने सारा टूर बुक किया, सब कुछ अकेले, एक हर रोड ढूंढ ली। वो तो टाइम टू टाइम आप खुद को एनालाइज करते जाते हो, मतलब जब आपको किसी सिचुएशन में भगवान भेजेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डेनमार्क में भेजी गई तो पता नहीं मेरे वो सारे सेंसेस अपने आप जग गए, मैं अपने आप हाईली फंक्शन हो गई, मुझे पता लगा कि अब मुझे ऐसे ऐसे फंक्शन करने हैं, और वो अपने आप मेरे को समझ आ गया। वही ना, हर किसी में इनबिल्ट कैपेबिलिटीज सारी होती है, बट हमारी यूं है कि सप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि हम कभी यूज ही नहीं करते उनको, हमेशा पापा का पल्लू पकड़ लिया, कभी फ्रेंड्स का पकड़ लिया, पीछे पीछे रहते हैं, सो वी नेवर रियलाइज दैट, बट वी डू हैव ऑल दोस क्वालिटीज। हाँ, आपको किसी का साथ चाहिए जिंदगी में, ये बिल्कुल नेसेसरी है। आप किसके साथ मेमोरीज बनाओगे, आप किसको मतलब हार्ड टाइम्स में काउंट ऑन करोगे, बट स्टिल आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ को कैसे देखते हो, डिसीजन लेना आना चाहिए।
लाइक स्टिल आई राइट। डिपेंड अपॉन पेरेंट्स इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, बट स्टिल आई लुक ऑन कि मैं अपनी लाइफ को किस मुकाम पे देखती हूँ या खुद को किस मुकाम पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड एंड माय जेंडर, स्पेशली जेंडर आई कैन से। ओके। सो मतलब इशू, तू स्वीडन से वापस आई तो तेरे को क्या फील हो रहा है कि तेरे में क्या क्वालिटीज ऐसी है जो तूने मतलब रिवाइव की, और जो तुझे लगा कि ये तेरे में थी पर तुझे पता नहीं था, पर तुझे स्वीडन जाके रियलाइज हो गई ये तेरे में। जैसे एक तो तूने अभी बताया कि अपने आप अपने बैगेजेस हैंडल करना, अपने आप अपनी ट्रिप्स मेंटेन करना, अपने आप सब देखना, और क्या क्या चीजें थी जो तुझे रियलाइज होगी वहां पे जाके, तुझे अपने बारे में पता लगा? तेरे में क्या चेंज हुआ वहां जाके? फर्स्टली ये चेंज हुआ कि अब मैं छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने लगी हूँ। अगर मैं कॉफी पीऊंगी तो मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। मतलब मैं हाँ। जिंदगी से कुछ बड़ा नहीं, मतलब मैं बड़ा करना चाहती हूँ, मैं अच्छा अचीव करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी से इंस्टेंटली कुछ बड़ा नहीं चाहती हूँ कि अब बस आज कल सुबह मेरी जिंदगी बदल जाएगी और वो होगा। और आई ट्राई टू मेक, मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी खुशी किसी में ढूंढूंगी, लाइक किसी पर्सन में ढूंढूंगी ना, तो शायद मैं हमेशा ना खुश रहूं। अपने और आप से अपनी हैप्पीनेस फाइंड करना। हाँ, अगर वो हैप्पीनेस आप फाइंड नहीं कर पा रहे तो ट्राई टू क्रिएट इट, कि आपको क्या चीज खुशी देती है, फिर आपको लाइक अच्छा लगने लगेगा, आप वो करने लगोगे धीरे धीरे। ओके। और ऑलमोस्ट टू द लास्ट क्वेश्चन कि तू क्या एडवाइस देगी अगर कोई पर्सन जा रहा है मतलब बाहर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए या फिर एक्सटर्नशिप के लिए या कुछ टाइम के लिए जस्ट ऐसे ही, तो तू क्या एडवाइस देगी किसी पर्सन को जो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है? पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से रैप ऑन करके रखना, दे आर योर सेवियर्स हर जगह। दूसरा, थोड़ा सा लाइट ऑन लेके चलना, लाइक ट्राई टू डिसअट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द प्रेशर यू आर गेटिंग कि यार मैं अकेला अकेला अकेली जा रही हूँ। ट्राई टू लाइक आई यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स, तो मेरा ध्यान जब भी प्रेशर मुझे फील होता था फोटो पे रहता था, कि मुझे बस फोटो लेना है, मुझे घर जाना है। हम्म। एंड ट्राई टू बिल्ड कि ये एक ऐसा टाइम है जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे आफ्टर ओके। 5 years। तो आप ऐसे डरो मत, उसको बस करते चलो, और खुद ज्यादा उम्मीदें मत रखो। अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक मीडियम भी जिंदगी अच्छी ही है। ओके। ओके। और ट्राई टू हैव बेटर कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स जो कि इंडिया में है, क्योंकि वो आपको इमोशनली बहुत पुल अप करेंगे। क्योंकि वहां पे जब स्नो होगी, अब रात 2 बजे अंधेरा हो जाता था दोपहर में, तो आपको डिप्रेसिव फीलिंग्स आने लगती थी क्योंकि लाइट नहीं थी। हम्म। अच्छा, मतलब वो और वही आपको एक पॉइंट कनेक्टेड टू योर। आएगा, हाँ, आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लगेगा कि शायद मैं गलत इंसान हूँ जो वहाँ पे आ गई आगे। फिर आपको एक थोड़ा थोड़ा खुद को पुल अप करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना है, ये मुझे गिव अप नहीं करना है। अगर मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं डिजर्व करती हूँ, तो मैं लेके ही जाऊंगी। वो होता है ना जिद, हम्म। जिद और ओके, तो जेल मतलब जिसे वही बोलते हैं। अपना स्ट्रेंथ गैदर करो, करेज रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, और अपने फैमिली और जो आपके लव्ड वंस है उनको अपने पास रखो। रेजोल्यूशंस का क्या हुआ जो पिछले साल लिए थे? पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई? दिस ईयर दिस ईयर मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है, गो विद द फ्लो। और लाइक मैं अपना बेस्ट दूं। मेरा पर्सनल जिस दिन, मेरा इस बार का कोई पर्सनल रेजोल्यूशन नहीं है ऐसा कुछ, लाइक पर्सनल बस ये है कि मेरे को फोकस है ना, आई डोंट हैव डेविएट फ्रॉम द पाथ। राइट। और पूछती हूँ, व्हाट वाज योर बेस्ट मेमोरी यू हैव विद मी? बेस्ट मेमोरी यार, यू हैव। आई हैव ऑल द मेमोरीज जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स के साथ है, तेरे साथ है, मेरी सारी बेस्ट मेमोरीज है। मैं मेरे स्कूल फ्रेंड्स को बहुत चेरिश करती हूँ, लिटरली। मैं अभी भी मेरे कॉलेज फ्रेंड के सामने बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ तुम लोगों को। और तेरे साथ मेरी बेस्ट मेमोरीज थी, आई बिलीव, जो अपन एक दूसरे के सूट के ऊपर ये करते, पेन चलाते थे, पेन से कुछ लिख देते थे, वो आई आई लव इट। मेरे पास अभी भी वो कुर्ते पड़े हुए हैं जिनपे तूने कुछ तो बकवास लिखा हुआ है, और मैं वो सब चीजें बहुत मिस करती हूँ, और वो स्टूपिडिटीज, आई लव इट। और वो ऑब्वियसली मैंने तेरे ही साथ की है। वो मैंने उसके बाद निधि के साथ थी, मैंने नहीं की, मैंने मेरे कोटा की जर्नी में नहीं किया। कॉलेज फ्रेंड के साथ ऑब्वियसली नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली वो मैंने तेरे साथ ही किया। जो क्लास में रोज पहनने वाला जो कपड़े होते थे उनपे जो पेन से लिख देते थे अपन, वो हरकतें मैंने तेरे साथ किया, और वो मेरी बेस्ट मेमोरीज है। हाँ, और मेरे थैंक यू मेरे सो मच बर्थडे फॉर द मेमोरीज। मेरे बर्थडे पार्टीज हर हाँ, तेरे बर्थडे पे भी आती थी मैं गांव से इतनी दूर से। हाँ, सो सब अच्छा था, बहुत अच्छा था। के साथ ये रियलाइज हुआ कि आखिर में आप अपने मार्क्स ठीक है आप याद रखोगे, वो रहेंगे ठीक है, बट वो जो मूवमेंट्स होंगे, जो मेमोरीज होंगे, जिन्होंने आपको लाइक बहुत अच्छा फील कराया और बहुत अच्छा आपको फील हुआ, स्टिल रिमेम्बर। वो 10th क्लास सोच के तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या था वो जिंदगी का। उसके बाद एक लाइफ ऐसी टर्न अराउंड हुई ना, इट नेवर बी द सेम।
वही ना यार, मतलब अच्छा टाइम था, चिल था, कोई टेंशन नहीं थी, बस चले जा रहे थे जैसे स्कूल वाले चलवा रहे थे। कोई सब्जेक्ट नहीं लेना था, कोई करियर में कंपटीशन नहीं था, कुछ बनना नहीं था। वही ना, बस रोज जाते थे, मस्त अपना बकवास करते थे, बेंच पे बैठ के खाना खाते थे, और वही लाइफ थी। सब कितने अच्छे थे यार उस टाइम। Okay, so this was our episode with Ishita Modi. Thank you so much, Ishu, for being on this podcast and sharing your vision about Sweden and your journey through the student exchange program. That was a great conversation. Thank you so much. Bye. Bye. Do like, share, and subscribe to the channel. This is Palam Tutor Dental Talk.